Only cover half a page with a few words and a signature, whose size fittingly reflects their expansive sense of self. Most of us have made such observations, but it takes a practiced eye to discern the scores of variations and interpret the subtle interplay of forces at work in any given handwriting. In fact, in Europe, handwriting analysis known as graphology, ये one word का क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लीजिएगा, what is graphology? Graphology now enjoys scientific acceptance and common sense. ठीक है, तो डॉक्टरों के बारे में फिर क्या कहेंगे? हर डॉक्टर की हैंडराइटिंग खराब होती है मिलता है. Okay. If you are a showy and colorful person, your handwriting is likely to be कैसा होगा? बोल्ड एंड लार्ज होगा. बोल्ड एंड लार्ज. Bold and large. Okay. C option. 76 का C, third one. Graphology is what? The analysis of handwriting. Analysis है. In fact, handwriting, हाँ, analysis ही, good. B. Second, 77 का दूसरा option, analysis of handwriting. Yes, sir. Handwriting analysis is A means of studying personality. not useful to us, an elementary study and imprecise नहीं, a means of studying personality. ठीक है. According to the author, people are not conscious of what they write, aggressive in the nature of their writing, इसकी बात नहीं कही गई है. Not conscious of the way they write, not used to personal writing. क्या है आंसर? A means of studying personality. 79 का 78 का 78 छूट गया क्या? अरे 79 की बात कर रहा हूँ. According to author, people are not conscious of what they write, aggressive in the nature of their writing. Not conscious of what they write. ये होगा सर. 79 का not conscious of what they write. Okay. 80. ए होगा कि सी होगा सर? Not conscious of what the way they write. एक सेकेंड. Not conscious of what they write. Okay. रुक जाइए. सी होगा सर. सी होगा. नहीं. According to author, people project their mental process into their handwriting. They subconsciously save and organize their letters, words and lines in ways that directly reflect their personality, not conscious of the way they write. ठीक है, C होगा. 79 का थर्ड ऑप्शन C. 80. The fact that handwriting is related to personality has been noticed by most people, is appreciated by dynamic people, is restricted to persons who write carefully, is known only to graphologists. Is known only to graphologists. पक्का? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है, वही जान ही सकते हैं. ठीक है, आप लोग देखिए घर पे. 78 में क्या होगा सर? 78 में यही है ना, डी है, मीन्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी ना. ठीक है, देखिए सुनिए, आप लोग जो पैसेज देते हैं उसमें आप लोग ये कोशिश मत करिए कि हमारा कितना सही हो जा रहा है. अब आप चूंकि आप लोग लगभग, हमको लग रहा 30-35 पैसेज तो कर ही चुके होंगे, उससे ज्यादा ही किए होंगे, है ना. अब आप लोग को जब पैसेज मिलता है तो घड़ी सामने रख के या स्टॉप वॉच ऑन करके, घड़ी में, मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन करके करिए कि पैसेज के साइज के हिसाब से. जैसे ये पैसेज है तो ये पैसेज मुश्किल से 3 से 4 मिनट आपका लगना चाहिए था. बात समझ में आई? ठीक है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि एक छोटा सा पैसेज लेके हम 12-13 मिनट में कर रहे हैं, हमारा सब सही हो गया ना. एग्जाम हॉल में ये मौका नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, इसलिए आने वाले टाइम में हम आप लोगों को थोड़ा लेंदी पैसेज देंगे. ओके, क्या टाइम हो गया?
अभी टाइम बचा है, एक मैसेज किया जा सकता है। करे हैं अगर आप लोग तो किया जा सकता है। यस सर। ओके, आइए। मच रैप्सोडिकल, व्हाट इज रैप्सोडिकल? जिस तरह का वर्ड आप लोग को मिल जाता है कुछ, ठीक है, कई बार अनकॉमन वर्ड, अनफैमिलियर वर्ड, उसको आप लोग चेक करते हैं मीनिंग क्या है, उसका मतलब नहीं, ये चेक किया करिए, ठीक है। उसी से आपका वोकैब तैयार होगा। और शायद यही वजह है कि वोकैब तैयार करने का ही एक तरीका है, किताबों से वोकैब रट के ही एग्जामिनेशन के जो पूछे गए वोकैब से उनको रट के हम वोकैब तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। यही वजह है कि कॉन्वेंट स्कूल में क्लास केजी से ही कंपलसरी कर देते पॉकेट डिक्शनरी। हर बच्चे को पॉकेट डिक्शनरी और स्कूल डायरी लेके आना जरूरी है। ओके, much rhapsodical nonsense has been written about me, Mona Lisa. Much rhapsodical nonsense has been written about the Mona Lisa and her enigmatic smile, and there have been endless speculations as to her character and the meaning of her expression. It is all beside the mark. It is all beside the mark. The truth is that the Mona Lisa is a study of modeling. Leonardo da Vinci had discovered that the expression of smiling is much more a matter of modeling of the cheek and of the forms below the eye than of the change in the line of the lips. It interested him to produce a smile wholly by these delicate changes of surface, hence the mysterious expression. पैसेज तो है छोटा, लेकिन क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेट। The word rhapsodical used in the passage means plain, unreadable, enthusiastic, uniform. क्या है? Enthusiastic. Mona Lisa is the name of क्या? A famous painting. नहीं, कहाँ दिया है यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ दिया है पैसेज में? सर पैसेज में ये नहीं दिया है फेमस पेंटिंग सर। तब मोनालिसा का नेम बस। तब तो कैसे आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, हमें अगर पैसेज में कह दिया कि घोड़ा गधा होता है और वही क्वेश्चन में पूछा गया तो हम लिखेंगे कि हाँ घोड़ा गधा होता है, ठीक है ना। हमको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। Much rhapsodical nonsense has been written about the Mona Lisa and her enigmatic smile, and there have been endless speculations as to her character and the meaning of her expression. यहाँ तक कभी तक नहीं पता चला कि मोनालिसा क्या है, कौन है। It is all beside the mark. The truth is that the Mona Lisa is a study of modeling. Hello? Yes, sir. साफ साफ लिख दिया है। The truth is that the Mona Lisa is a study of modeling. ठीक है, वो मॉडलिंग का एक अध्ययन है। अब इस आधार पे हम इसका आंसर करेंगे। Leonardo da Vinci had discovered that the expression of smiling is much more a matter of modeling of the cheek. जो मॉडलिंग का मैटर है जो है वो चीक का स्माइलिंग की वजह से, एंड ऑफ द फॉर्म बिलो द, जो फॉर्म बनता है आई के नीचे, ठीक है, बिलो द आई, देन द चेंज इन द लाइन ऑफ लिप्स, इट इंटरेस्ट हिम टू प्रोड्यूस अ स्माइल। यहाँ पे पूरा मामला जो कहा गया है ये सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड है कि वो मॉडलिंग का मॉडल है, ठीक है। तो मोनालिसा, क्वेश्चन 67, Mona Lisa is the name of a beautiful woman who made history in ancient Rome। बिल्कुल नहीं, a famous painting, पेंटिंग की बात ही नहीं कही गई है। The artist mistress, ये भी बात नहीं कही गई है। तो क्या होगा? अगर मोनालिसा के बारे में किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पे जो ये सी ऑप्शन कह रहा है द आर्टिस्ट मिस्ट्रेस, तो वहां पे वाकई वो मोनालिसा के बारे में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो सीधे कह देगा क्या शी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मिस्ट्रेस ऑफ लियोनार्डो डा विंसी।
है कि नहीं? लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग बात क्या हो रही है? एन आर्ट टेक्निक, हाँ या ना? वही गलती की है जी सर, हम भी वही गलती किए थे। हाँ नहीं, वो ये तो क्वेश्चन इस तरह बनाती ही है। और मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ, पैसेज अगर लेंदी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन वो पूरा नंबर देगा। पैसेज अगर छोटा है तो बड़ा खतरनाक है, ठीक है? तो वहाँ केयरफुल होकर कदम रखिएगा। ओके, द ट्रुथ अबाउट द मोनालिसा इज दैट इट इज अ स्टडी इन क्या? मॉडलिंग सर। मॉडलिंग, ठीक है? अब इसी में लोग फेशियल एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, द पेंटर was able to produce that strange smile on Mona Lisa's face by, देखिए आ गया ना, क्या होगा? Delicate change on the surface cheek और below the eyes ना, ठीक है? बहुत बढ़िया। The author of the above passage has examined Mona Lisa from क्या? an imaginary point of view. हैं? सर सी क्या बात कर रहे ऑप्शन सर, सी वाला होगा, सी थर्ड वाला एक purely artistic angle. प्योरली आर्टिस्टिक एंगल, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे उसकी कल्पना थोड़े आप फिर ओरिजिनलिटी में चले गए। पैसेज के हिसाब से हमें आंसर करना है, ठीक है? उसे कल्पना थोड़े किया, तू बताया है यहाँ पे कैसे बनाया था, ठीक है? ओके सर 67 को क्या माने, कौन सा सही माने 67 में? मैडम 67 में डी साफ साफ बोला गया है, डी सॉरी हाँ, दोनों का डी है। 67 का भी डी है और 68 का भी डी है। माने क्या, वो क्लियर हो गया? आर्ट टेक्निक की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है? वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे ले लीजिए। सुनिए, जब भी हमको चाहे फैक्ट के ही बारे में कहा गया हो, ठीक है, बात समझिए, किसी पॉलिटिशियन के ही बारे में, किसी पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी से कुछ कंटेंट ले लिया गया है, ठीक है? आई बात समझ में? अब उसमें बता दिया गया है कि पॉलिटिशियन पप्पू होते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा पप्पू होते हैं, ठीक है ना? तो देखिए जरा सा 67 पे ही मैं आ रहा हूँ। ऑप्शंस को दो तरीके हैं, या तो हमको सही आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जितने गलत हो सकते हैं उनको रूल आउट कर दीजिए। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? अ ब्यूटीफुल वुमन हु मेड हिस्ट्री इन एंशिएंट रोम, हाँ ये सही है कहानी के हिसाब से, लेकिन जो पैसेज में हमें कंटेंट में दिया गया है उसमें इस बात का कहीं जिक्र है? नो सर। आकांक्षा मैम? नहीं सर। नहीं सर, तो रूल आउट, इसको क्रॉस करिए। अ फेमस पेंटिंग, पूरे पैसेज में कहीं ये आपको पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग है? कहीं लिखा है पैसेज में? हम मान लिए कि मोनालिसा को पहली बार पढ़ रहे हैं, मोनालिसा नाम हम पहली बार सुन ही रहे हैं, हमको नहीं पता। पैसेज बता रहा है क्या कि वो पेंटिंग थी? नो सर। नो सर, ठीक है? सी द आर्टिस्ट मिस्ट्रेस, वो आर्टिस्ट की मिस्ट्रेस से ऐसा पैसेज में कोई इंफॉर्मेशन मिला? नहीं सर, नहीं सर। तीन साफ साफ कट गया, ठीक है? ओके चलिए, उसी तरह यहाँ पे 68 में फेमिनिन साइकोलॉजी है ही नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन की बात ही नहीं कही गई है, फेमिनिन फॉर्म की बात ही नहीं कही गई है, हाँ मॉडलिंग की बात हुई है, ठीक है? ऑलराइट, यस सर, थैंक यू। तो लगे हाथ इसको भी खत्म कर दें क्या हम लोग? यस सर, यस सर। मतलब हमेशा आप लोग पढ़वा रहे हैं कि खुद भी किए हैं, ये बताइए पहले। क्या है सर? इसके बाद अब नहीं किए। The author says that wedding, birthday and Christmas present, नहीं तो आप लोग कल कर लीजिएगा, ठीक है? कल के और भी हम पैसे देंगे। कितने लोग नहीं किए ईमानदारी से बता दीजिए, नाम बता दीजिए कितने लोग नहीं।